Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel Amresh Sahu. How are you? I hope you all are fine. ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025 ମସିହାର ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍ଟରେ ଥିବା 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଚାଲ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି। ଆଉ ଚାଲ, ତ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି 6 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଆଂଶିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି 200 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଅପସାରଣ କରେ ତେବେ ବସ୍ତୁର ଆଭାସୀ ଓଜନ କେତେ? ଏଠି ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି? 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆଭାସୀ ଓଜନ ବାହାର କରିବା, ବସ୍ତୁର ଆଭାସୀ ଓଜନ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ଲବନ ବଳର ପରିମାଣ। ତ ପ୍ଲବନ ବଳର ପରିମାଣ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ସେଟା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ବସ୍ତୁର ଆଭାସୀ ଓଜନ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କେତେ? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ହେଲା, ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ 6 କେଜି ଦେଇଛି, ତ ତାର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କେତେ ହେଇଯିବ 6 କେଜି ଏମ୍, ଯୋଉଟା କି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏମ୍ ଦେଇଛି। ତ m ଇଜିକାଲ ଟୁ 6 କେଜି ଆଉ g ଆମର क्वेश्चन କେତେ ଅଛି 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏଇ ଦିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, w ଇଜିକାଲ ଟୁ mg, ଯୋଉଟା କି ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ। ତ m ଇଣ୍ଟୁ g, ତ 6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଇଜିକାଲ ଟୁ 60 ନ୍ୟୁଟନ ହେଇଯିବ। ଏଟା କେତେ 60 ନ୍ୟୁଟନ। ଆଉ ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ, ତ ଅପସାରିତ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ତ ଦେଇଛି କେତେ m ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ତାର 0.2 ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଟା 200 ଗ୍ରାମ ଅଛି। 200 ଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ ଯଦି କେଜି କରିବା 200 ବାय 1000 ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା, କରିଦେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏତିକି କେଜି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ 0000 କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ 2/10। ଆଉ ଆର ଓଜନ କେମିତି ବାହାରିବ? ତ w ଇଜିକାଲ ଟୁ କେମିତି ବାହାରିବ m ଇଣ୍ଟୁ g, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେଇଛି 2/10 ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକି କେଜି ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ 10 ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ। ତ 10 କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 2 ନ୍ୟୁଟନ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବସ୍ତୁର ଆଭାସୀ ଓଜନ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କେତେ 60 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ଜଳର ଓଜନ କେତେ 2 ନ୍ୟୁଟନ। ତ 60 ମାଇନସ୍ 2 କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା? ତ 60 ମାଇନସ୍ 2 ଯୋଉଟା କି ହେଇଯିବ 58 ନ୍ୟୁଟନ। ବସ୍ତୁର ଆଭାସୀ ଓଜନ ହେଲା 58 ନ୍ୟୁଟନ। ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଛି ଏଟା। ତ 58 ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ବି ଅପସନ। ତ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଭଳି ଆମେ क्वेश्चन 2 କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗ 6 ଗୁଣ କରାଗଲା, ତାର ଗତିଜ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ? ତ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ତ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ଆମର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଇ କେ, କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଇଜିକାଲ ଟୁ ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତାର ପରିବେଗର ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମର ପରିବେଗକୁ ଯଦି 6 ଗୁଣ କରାଗଲା, 6 ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଭି ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 6v। 6v ହେଲେ ତ ନ୍ୟୁ ଆମର ନୂତନ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ ଇ କେ ଇଜିକାଲ ଟୁ ହାଫ ଏମ୍ ଭି ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା 6v ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 36v ସ୍କୋୟାର। ତ ହାଫ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ 36v ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା 36 କୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଲେଖିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କେତେ ଥିଲା ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ତାର 36 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ତାମାନେ 36 ରୁ ଆମେ 36 ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ରୁ ଆମେ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା ଖାଲି ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତ 35 ଏମ୍ ହାଫ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା କି ମୂଳ କ'ଣ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର କେତେ ଗୁଣ ବଢିଛି ନା 35 ଗୁଣ ବଢିଛି। ତ ଆମର ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି 35 ଦେଖିବା। ତ ସି ଇଜ ଦ
करेक्ट आंसर। से भली आमे क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्व करिया। क्वेश्चन नंबर 3 कोन अछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 अछि कहि विद्युतात्मक कार्य क्षेत्र रे बल और विस्थापन मध्य रे कोणर परिमाण केते हबो। तो कोणर परिमाण केते हबो तो एटा हला 180 डिग्री। काइना कार्यर कोन फार्मूला W इक्वल टू हम तमर जो बही रे देछि एफएस किंतु एटा एक्चुअली कोन एफएस cos थीटा। तो थीटा रे वैल्यू cos थीटा रे वैल्यू जतले 90 डिग्री अधिक हुए थीटा रे वैल्यू सेतले cos रे वैल्यू कोन हुए नेगेटिव। तो एटी केते हो 90 रो अधिक कोडा अछि 180। तो डी इज द करेक्ट आंसर हैला। तो हम 90 डिग्री बेले कार्य 0 हे जिवो आउ 0 डिग्री बेले छळा तक हिसाब करे पड़िबो 45 बेले अलगा किछ हबो किंतु हमर 180 बेले सबठारु माइनस हबो सबठारु कम हबो आउ 90 डिग्री बेले 0 हे जिवो कार्य परिमाण काइना cos 90 डिग्री वैल्यू ला 0। तो fs * 0 0 हे जिवो। तो एटी विद्युतात्मक पचारछि तो हमर कोन हबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। से पर हम क्वेश्चन 4 को चलो सॉल्व करिवा। क्वेश्चन 4 कोन अछि ना गोटे हालुका जान ए अन्य एक भारी जान बी समान गतिज शक्ति सहित गति करथवा बेले समान परिमाण गति निरोधक बल प्रयोग करा गला। तो निम्नोक्त मध्य केउठी ठीक। तो तांकर दी जनकर गतिज शक्ति ए आ बी रो गतिज शक्ति जेहेतु समान तो समान परिमाण रे गति निरोधक बल प्रयोग करा आइछि तो उभय समान दूरता गति करी स्थिर हो जिवो। तो सी होची यार करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की चलो देखिबा। तो गोटे 60 वाट रो बल्ब दिन को 6 घंटा हार रे जळिले अप्रैल मास रे होची विद्युत देय केते टंका हेबो। गोटे यूनिट विद्युत देय केते 2.5 टंका जोटा कि 2.50 एति हेले एटा को सॉल्व करिवा आसे देखिबा केते टंका खर्च होची अप्रैल मास रे विद्युत देय दबा को पड़िबो। तो हमर कोन देछि बल्ब रो पावर केते देछि हे देखो 60 वाट। तो बल्ब रो पावर हे गेला p केते 60 वाट। तो वाट हमर एटा एसआई यूनिट किंतु एठी हमें जतले हिसाब करिबा तो एटा किलोवाट करिया पड़िबो हैला। काहेना एटा हमर व्यवसायिक एक गला किलोवाट आवर तन करी 60 को मु जदी 1000 रे डिवाइड करिबी ताले गोटे जीरो कैंसिल हे जिवो 6/100 किलोवाट हबो। ठीक अछि। तापरे हमें कोन बाहर करिबा हमरो केते यूनिट माने केते किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट रे कन्वर्ट हे गेला तो केते घंटा दिन को चालुची हार रे जळिले तो हमरो 6 घंटा अप्रैल मास केते दिन 30 दिन दिन को जदी 6 घंटा हला 30 * 6 केते हे जिवो 180 घंटा 180 घंटा त माने टाइम केते हे गेला 180। तो हमर ये हे गेला केते 6/100 * 180। तो 6/100 इंटू एटा इंटू केते 180 एटा हम कैंसिल करिबा हे गोटे जीरो कैंसिल हे गेला। कैंसिल हैला परे तापर कोन देछि ना एटा 2 रे भी कैंसिल हे जो 2 2 नुआ एटा हला 2 5 हमर हला 900 केते 54/5 54/5 एति की यूनिट 54/5 कोन यूनिट माने किलोवाट आवर। से कहिछि गोटे किलोवाट आवर को केते टंका 2 पॉइंट गोटे यूनिट जा गोटे किलोवाट आवर से तो 2.50 माने 2.5 टंका 2.5 जोटा की कार आधा 5 रो आधा। तो 54/5 इंटू केते हे जिवो 54/5 इंटू केते 2.5 माने कार आधा एटा को लिख परिया शॉर्ट रे 5/2। तो 5 कैंसिल हे जिवो तो हमर 2 को जदी 54 को कैंसिल करबा 2 द्वारा तो केते हे जिवो 27। हमर केते टंका खर्च हबो अप्रैल मास रे दे विद्युत देय पड़िबो तो 27। तो डी इज द करेक्ट आंसर। पिला माने वीडियो टी जदी भलो लागि थाए ताले कोन करदिबो लाइक शेयर कर दबो संग मानन सहित आ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो एई बळी आउरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित मु नेक्स्ट वीडियो रे आसीबे हैला। हमर क्वेश्चन नंबर 6 चलो सॉल्व करिया। क्वेश्चन नंबर 6 कोन देछि ना कार्बन डाइऑक्साइड अणु रे कार्बन आ ऑक्सीजन रो वस्तुत्व अनुपात देछि 3:8। तो सेही परि सल्फर डाइऑक्साइड अणु रे सल्फर और ऑक्सीजन रो वस्तुत्व अनुपात केते हबो। तो कार्बन ऑक्साइड रे कार्बन डाइऑक्साइड रे देछि कार्बन और ऑक्सीजन वस्तुत्व अनुपात अब मु ताको कोन बाहर करने। तो सल्फर डाइऑक्साइड रे कोन फार्मूला तो सल्फर डाइऑक्साइड रे फार्मूला हला
SiO2। तो एठी पचारछि सल्फर आ ऑक्सीजन नो वस्तुत्व अनुपात। तो सल्फर रो केते वस्तुत्व 32U 32:2। हमर ऑक्सीजन नो केते ऑक्सीजन नो हला केते 8 नंबर अछि सेटा किंतु वस्तुत्व हला तार 16 जेहेतु O2 अछि तो 16 * 2 केते हे जिवो 32। तो 32:32 केते हे जिवो आंसर हे गेले 1:1 जोडे कि ऑप्शन कोड अछि देखिबा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहूची निम्नोक्त मध्यनु केउ यौगिकटी चार्जित कणिका को नै गठित नुहे एउडा सब HCl ये सब कोन सह संयोज्य बंध जोटी सेटा चार्जित कणिका को नै गठित नुहे तन करी ये सब हमरा कोन विद्युत संयोज्य बंध विद्युत संयोज्य यौगिक तन करी एउडा सब चार्जित कणिका को नै गठित तो हमर गठित नुहे किए NH3 एटा हला अमोनिया। तो ये हला करेक्ट आंसर 8। तो क्वेश्चन 8 अछि होची क्लोरीन 1735 आ गुटे क्लोरीन 1737 द्वय प्रकृति रे केउ अनुपात रे मिली थाए। हमर फर्स्ट जो अछि क्लोरीन 1735 सेटा हमर 75% मिले प्रकृति रे आउ आरडा केते परसेंट मिले तो ये हला 25%। ए दीटा रे जदी हम कोन करिया अनुपात बाहर करिया परसेंटेज कैंसिल हे जिवो आ 20 25 30 75 आ जदी कैंसिल हो आ 25 के तो हमर हेला 3:1। तो कोड इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छडा हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिया। क्वेश्चन नंबर 9 कोन अछि ना 400 मीटर लंबा एक सेतु को 150 मीटर लंबा एक ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड बेगर अतिक्रम करे एथिपई ट्रेन टी को केते समय लागिवो। तो समय रो सूत्र कोन दूरता बाय बेग। तो एठी ट्रेन टी जदि सेतु को अतिक्रम करछि तले सेतुर दैर्घ्य सहित निजर दैर्घ्य को अतिक्रम करिवो ताल टोटल दूरता तक केते अतिक्रम करिया पड़ियो 400 मीटर प्लस केते 150 सेतुर दैर्घ्य प्लस ट्रेन रो दैर्घ्य तो बाय टोटल केते बेग रे से जाउछि तो 50 मीटर पर सेकंड जोडे कि हमरो एटा को सॉल्व कर देले समय बाहर जिवो। तो एटा केते होछि 550 बाय 50 तो हम 0 0 कैंसिल हे गेले तो एटा को डिवाइड करले 55/5 केते हे जिवो 11। तो 11 सेकंड लागिवो तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेमिति हमें क्वेश्चन नंबर 10 को चलो सॉल्व करिवा। क्वेश्चन नंबर 10 कोन अछि क्वेश्चन नंबर 10 कहूची तो निम्नोक्त केउ ग्राफटी वस्तुर समगति सूचित करे नाही। तो एठी हमर कोन अछि देखो एटा ए ऑप्शन ने तो हमर एठी टीएस माने समय आ दूरता एटा समय विस्थापन ग्राफ एटा सरल तिर्यक सरल रेखा तन करी ये सम गति को सूचित करूची। एठी v आउ t माने समय परिवेग परिवेग एठी समय अनुसार समय बढ़िबा सहित परिवेग बदलुची काहे ना परिवेग कोन बढ़ी बढ़ी जाईची देखो ए जो ग्राफटी तन करी एटा कोन परिवेगर परिवर्तन होउची तन करी ये समगति सूचित करे नाही। तो एई हे जो हमर आंसर बी होउची करेक्ट आंसर। एठी कोन देइची ना सी ऑप्शन टी चेक कर दवा समय आउ परिवेग परिवेग एठी कांस्टेंट समय परिवर्तन सहित परिवेग कांस्टेंट होउची माने ए ग्राफ देखो समय अक्ष सहित समांतर माने कोन परिवेग एठी स्थिर माने समगति एटा ये समगति सूचित करे नाही माने बी ऑप्शन हमर सेपरी डी देखि दवा ये भी ग्राफ कोन अछि समय आउ दूरतार एटा होची तिर्यक सरल रेखा तन ये भी समगति को सूचित करे। तो बी होची हमर करेक्ट आंसर। सेपरी हमें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिवा। एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे निम्नोक्त केउ माध्यम रे ध्वनि रो वेग सर्वाधिक तो एटा सब देखि दो बय रे हमर ध्वनि रो वेग सब विभिन्न माध्यम रे देइची। तो हमर एठी एल्युमिनियम हबो करेक्ट आंसर सर्वाधिक होची एल्युमिनियम। सेपरी क्वेश्चन नंबर 12 जने पुरुषर कंठस्वर जने नारीर कंठस्वर मध्य पार्थक्य निम्नोक्त मध्य केउ लक्षण हेतु देखा जाए। पिच पई हमें जानि परिबा तो पिच कार अधिक नारीर कंठस्वर रो पिच अधिक पुरुषर कंठस्वर पिच कम एई लक्षण रो हमें तार पार्थक्य जानि परिबा। सेमति हमें क्वेश्चन नंबर 13 आस देखिबा जने व्यक्ति गोटे उच्च पर्वत सम्मुख रे ताठारु केते 513 मीटर दूर रही उच्च शब्द सृष्टि कले 3 सेकेंड पर ध्वनि प्रतिध्वनि सुनिबा को पाइले तो ध्वनि केउ बेगर गति करूछ। तो बेग बाहर करिया हमर कोन सूत्र दूरता बाय समय। तो जेहेतु पहाड़ ठारू व्यक्तिर दूरता 513 मीटर तेणु से जो ध्वनि पहाड़ रे बाजी की आउ थरे
कौन से व्यक्ति पाखु आसिया केते समय नहीं टोटाल 3 सेकेंड किंतु ध्वनिटी अतिक्रम करथिबा दूरता 513 हबनी तार 2 गुण काईना मनकर लोकटा एठी ठिया आइछि पहाड़टी एठी अछि तो जिबाटा 513 फेरिबाटा पुनी ध्वनि 513 तो केते हे जो 513 गुणन 2 केते हे गला जोटा कि 1026 टोटाल ध्वनि को केते दूरता जिबा पड़िछि 1026 मीटर आउ केते सेकेंड रे प्रतिध्वनि सुनिला से ता मुहरु जो ध्वनि बाहर थिबो पहाड़ रे बाजी कि आउ थरे फेरिकी ता कान पाखु आसीबाकू तो के समय लागी प्रतिध्वनि सुनिबो 3 सेकेंड पर कहिछि ता माने जिबा आसीबा समय केते 3 तो आमे जदी एटा डिवाइड कर दबा 3 3 केते 9 आ बळला 1 12 3 12 3 2 6 तो 342 कोन एटा हला तो ध्वनि रो वेग होइथिबो तो 342 मीटर पर सेकेंड जोटा कि सी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि तो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केतेक 14 नंबर केतेक मौलिक मानक आइसोटोप सहित तार एक व्यवहार जोड़ी करी दिया जायछि तो आ भितर से कोन कहउछि तो आई ऑप्शन 2i 3i आई भी देखि दियो तो से कहउछि उपरोक्त मानक मध्यरु केउ जोड़ी गुडी को सठिक अटंती तो हमर आमे जानचंती देछि कोन कोबाल्टटा हमर कोबाल्ट 60 कैंसर चिकित्सा पई एटा ठीक अछि आ यूरेनियम टा भी कोन अछि न्यूक्लियर रिएक्टर रे जाळेन रूपे व्यवहार करा जाय तो I2i कोड अछि आ बाकी ए दिटा कोन एटा आयोडीन 131 हमर शिल्प क्षेत्र रे व्यवहार कराटा भूल देछि आ सोडियम ये भी कोन देछि 24 कार्बन डेटिंग एटा भी भूल देछि तन कर हमर I2i ठीक अछि को ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर से बळे हमें क्वेश्चन नंबर कोडा को देखिबा 15 ने कोन अछि क्वेश्चन नंबर 15 अछि 15 को जी कोन गतिर विपरीत दिगरे कोन प्रतिरोधी बल विरुद्ध रे वस्तु द्वारा संपन्न कोन समस्त कार्य का सहित समान तो कार्य रे गोटे फार्मूला अछि W/F आ गोटे फार्मूला मध्ये अछि हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu² जोडे कोन गतिज शक्ति रो कोन परिवर्तन रो परिमाण सहित समान एटा तो बी ऑप्शन अछि तो बी इज द करेक्ट आंसर हैला तो सेहि परि हमें क्वेश्चन नंबर 16 को देखिबा तो एक वस्तुर वस्तुत्व m और परिवेग v यह एक कांथरे आघात पाई सम परिवेग रे विपरीत दिगरे फेरी आसिला तो यार संवेगर केते परिवर्तन हैला तो संवेगर परिवर्तन आमे केमिति बाहर करिया ना हमर अंतिम संवेग माइनस कोन प्रारंभिक संवेग तो अंतिम संवेग केमिति बाहरिबो आगे प्रारंभिक संवेग बाहर कर दवा से कहै वस्तुर वस्तुत्व केते m परिवेग v हेले तो हमर कोन हबो तो हमर हम प्रारंभिक संवेग आगे बाहर कर दवा तो प्रारंभिक संवेग केते हे जिवो m * v आ से कोन कहै ना अंतिम संवेग जदि फेरिला बाजी की ता माने वस्तुर वस्तुत्व तो परिवर्तन हबो ने केते हबो से m रहइबो जेहेतु से विपरीत दिगरे आछि सेही बेगरे तो v न होई कि बेगटा कोन हे जिवो -v तो अंतिम संवेग केते हे जिवो m * -v जोडा कि -mv तो हमर कोन बाहर करे अछि संवेगर परिवर्तन तो संवेगर परिवर्तन केमिति बाहरे तो pf माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम pi तो एटा हला हमर कोन pf अंतिम एटा माने -mv माइनस प्रारंभिक संवेग केते खाली mv अछि तो एटा हला -mv तो दीटा माइनस है तो -2mv हमर संवेगर परिवर्तन केते गेला -2mv चलो देखिबा को ऑप्शन अछि एटा केते नंबर हम करथिले 16 नंबर तो -2 डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 17 तो कमान निकित रे कि निम्नलिखित केउटी माप करा जाय तो कमान निकित रे कोन माप करा जाय ना बल जोटा कि ओजन माप करा जाय आ ओजन माने ओजन एक प्रकार बल तो आंसर कोन होबो एठी सी इज द करेक्ट आंसर से परि क्वेश्चन नंबर 18 को चलो देखिया सॉल्व करिया दुटी वस्तु ए और बी वस्तुत्व यथाक्रम केते केते देछि दुटा वस्तु 20 ग्राम और 30 ग्राम उभय परस्पर ऊपर बल प्रयोग करी गति करिया को लागिले जेतेबेले ए गोटे निर्दिष्ट दिगरे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड परिवेर गति करथबो सेतेबेले बी केउ बेगरे गति करूथबो चलो एटा समाधान करिबा तो हमर गोटे वस्तुर मन रख दियो केते 20 ग्राम ए रो बी रो हला 30 ग्राम तो एटा सॉल्व करिबा गोटे पेज रे सॉल्व करिया चलो हां तो कोन देछि हमर ए वस्तुर वस्तु तो केते देछि आ बी गोटे वस्तु तो दी जनकर वस्तु तो केते देला
तो ए रो मुझे सब M1 नेबी तो वस्तुत केते 20 ग्राम बी रो से भलिया M2 केते ना 30 ग्राम हैला वस्तुत दीटा वस्तुर वस्तुत तो ये जेतबेले कोन थिले फास्ट हम स्थिर रे मनकर अछन मनकर एटा हला ए एटा हला बी स्थिर रे अछन तो तेणु करी प्रारंभिक परिवेग केते हिजो 0 आ बी बॉल रे भी कोन हिजबो प्रारंभिक परिवेग से भलिया 0 तो U2 भी केते हिजबो 0 V1 से कहिछि ए रो केते बेग देछि ए रो बेग देथिला 6 सेंटीमीटर पर सेकंड क्वेश्चन जाई के देखि दबो तो एटा हला 6 एटा हला हम मु ए रो सब 1 नउछि तो कोन अंतिम परिवेग केते हिथबो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड मोर कोन बाहर करिया पड़ियो V2 माने बी बॉल टी केउ बेग रे जाउछि तो V2 बाहर करिया अछि हैला तो विपरीत दिग जेहेतु जाउछि तो एटा माइनस रे आंसर बाहरियो देखिबा कोन होउछि आ कोन तो एटा हला संवेग संरक्षण नियम माने संघात पूर्व और संघात पर समान संवेगर परिमाण समान तेणु संवेग संरक्षण नियम फॉर्मूला पड़िबो कोन से फॉर्मूलाटा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 तो हमर देखो U1 और U2 रो वैल्यू केते अछि ना 0 तो हमें जदी एटी पुट कर दबा लेफ्ट साइड रो सब कैंसिल हे कोन हे जो 0 प्लस 0 0 हे जिवो आ हमर खाली कोन रहइबो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0 सहित समान तो हम लिखि दबा चलो नेक्स्ट आ गुटे पेज रे तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू केते 0 तो दैट इंप्लाइज दिस मोर बाहर कर थिला कोन V2 तो मु कोन करमी तो V2 को गोटे लेफ्ट साइड रे रखिमी तो M2 V2 इज इक्वल टू केते हबो माइनस M1 V1 आउ V2 केते हे जिवो V2 हे जिवो मोर केते ना V2 हे जिवो इज इक्वल टू माइनस M1 V1 बाय M2 तो हमें सब वैल्यू पुट कर दबा तो M1 रो वैल्यू केते अछि ना M1 थिला -20 ना खाली 20 कि माइनस चिन्ह अछि -20 इनटू V1 केते तो V1 देथिला केते आर बेग देथिला 6 बाय तो M2 केते थिला 30 ग्राम तो एटा कैंसिल कर दियो 0 0 कैंसिल हे जिवो 3 रे 6 को कैंसिल कर दिले 3 दुने 6 2 दुने केते गेला एटा माइनस चिन्ह -4 सेंटीमीटर पर सेकंड तो -4 कोडी ऑप्शन अछि देखिया तो हमर -4 ऑप्शन नाही 4 अछि तो एटा विपरीत दिग पई माइनस बाहरछि तो हमें कोन मारिबा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर तो हमें क्वेश्चन 19 देखिबा क्वेश्चन 19 कोन अछि पृथ्वी रो पृष्ठ रे वस्तुर ओजन 16 न्यूटन हेले यार केंद्र ठारे वस्तुर ओजन केते पृथ्वी रो केंद्र रे मन रखियो जीरो वैल्यू केते माध्याकर्षण जनित त्वरण केते 0 तन करी ओजन केते हे जिवो वस्तु तो परिवर्तन हबो नै वस्तु तो जहा भी थिबो m into g सहित पुनी मल्टीप्लाई हेले केते हिजो 0 न्यूटन तो केंद्र रे केते हिजो 0 न्यूटन d इज द करेक्ट आंसर से पर हमें क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा 20 कोन अछि तो 20 कहू जी क्षीरर शुद्धता मापिबा केउ पाई केउ यंत्र व्यवहृत हुए तो क्षीरर शुद्धता मापिबा में मन रखिबो लैक्टोमीटर केमिति मन रखिबो ना क्षीरटा जतले दही रे परिणत हुए लैक्टिक एसिड थाए सेही हिसाब रे लैक्टोमीटर करी मन रखिबो आउडे अछि सेबला हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर हमर कोन वायुमंडल रो आर्द्रता मापिबा में सेबला आउ दुटा ऑप्शन होछि ताकू दे नेट रे सर्च कर देखि दबो कोन सब हुए तो हम 21 सॉल्व करिया चलो तो ओदा लुगा को खोली सुखाइले ता चंचल सुखी जाय या बाष्पीभवन प्रभावित करुथुबा केउ कारक को सूचित करे तो हमर को ओदा लुगा खोली की सुखेबा जदी खोली की सुखेबा ताले कोन तार बढ़िबो पृष्ठ तळर क्षेत्रफल वृद्धि तो एई ताहला हमर आंसर डी इज द करेक्ट केउ कारक को सूचित करछु जल्दी जल्दी बाष्पीभवन हार वृद्धि हेबो हैला तो क्वेश्चन नंबर 22 को चलो सॉल्व करबा ताऊ चारोटी क्वेश्चन आ जल्दी जल्दी सॉल्व करदबा तो साधारण कोन देछि साधारण वायुमंडलीय चापर 1 सहस्रांश ओ केउ तापमात्रा रे गैसीय अणु बा परमाणु तार स्वतंत्र सत्ता हराई घनीभूत क्वांटम अवस्था प्राप्त हुअंती तो एटा कोन हबा आंसर हमर क्वेश्चन नंबर एटा 22 जोटा कि 0 केल्विन तो ऑप्शन नाही तन करी हम कोन करिया केल्विन को हमें सेल्सियस रे कन्वर्ट करले 0 - 273 हम माइनस करिया पड़िबो तो केते हे जो आंसर हमर सेल्सियस रे कन्वर्ट हे गेला -273 डिग्री कोन सेल्सियस तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 23 कोन अछि घन कुडी
ଏକ ଏରୋସଲ କଲଏଡର ଉଦାହରଣ। ଏହା ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ବିକ୍ଷେपिତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଣ? ତ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ବିକ୍ଷେपिତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ମାନେ କମ ପରିମାଣ ଥିବ, ମାଧ୍ୟମଟା ଅଧିକ। ଏଠି କଣ ଅଛି ଦେଖ, ୱାର୍ଡ ରୁ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ଏରୋସଲ, ଏରୋ ମାନେ ଏୟାର, ଏୟାର ଅଧିକା ଥିବା ଦରକାର, ତା ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଅଧିକା ଥିବା ଦରକାର। ତ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଅଧିକ ହବା ଦରକାର, ଗ୍ୟାସ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଣ ହେଇଯିବ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ତ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଭଳି 24 क्वेश्चन को देखिबा। क्रोमाटोग्राफी प्रणाली रे मिश्रणर उपादान ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ଧର୍ମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ହୁଏ? ତ ଏଟା ହେଲା ଦ୍ରବଣୀୟତା। ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଳ ସହିତ କଣ ହବ, ମିଶିଯିବ, ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତମ ବହିରେ ଦେଇ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିବ। ତ ଏଟା ହେଲା ଆନ୍ସର, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଫର ଦିस क्वेश्चन। 25। ତ 25 क्वेश्चन କଣ ଅଛି? 25 କହୁଛି ତ ଏକ ମୋଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ 3 ମୋଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେତେ ମୋଲ ସଂଖ୍ୟକ ଏମୋନିଆ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମାନେ N2 ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ କେତେ 3 ମୋଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଆମେ ଆगे ତାହେଲେ ଇକ୍वेସନ ଲେଖିଦବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦବା। N2 ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶି କଣ ତିଆରି କରିବ? ଏମୋନିଆ, NH3 ହେଲା। ତ ଏଟା ସମତୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ଦେଖିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ N2 କେତେଟା, N କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା। ତ ରାଇट ସାଇଡ ରେ N ଗୋଟେ ଅଛି, ତ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା। ସେହିପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରାଇट ସାଇଡ ରେ କେତେଟା ହେଇଗଲା? 6, 2 2 3 6 6। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଏଠି ଗୋଟେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମର ଏବେ ଇକ୍वेସନ ଟି ସମତୁଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି 1 ମୋଲ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ N2 ର ଯୋଉ ସହଗ କଣ ଅଛି ଏଠି? କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଅଛି। 1 ମୋଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 3 ମୋଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶି କେତେ ଏମୋନିଆ? ନା ଆର ସହ କଣ ଅଛି? 2 ମୋଲ। 2 ଇଜ ଦ करेक्ट आंसर। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एथि मध्य हमर 25 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि 2025 मसिया रे पडिछि। ए क्वेश्चन गुडी को तमे भलो भाबरे प्रैक्टिस करिवो। आउ जदि वीडियो टी भलो लागिथो ताले लाइक शेयर कर दबो संग मानक सहित। परीक्षा अल्प दिन रहिला आ चैनल को सब्सक्राइब करू ना पिला माने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। काइना एमति आउरी भलो भलो वीडियो मु आनी भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित, तेणुक चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।